We have three sides of the panels coming in. इंडस्ट्री साइड पे जाकिर जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो खुद एक गारमेंट एक्सपोर्टर हैं और प्रेसिडेंट है गारमेंट एक्सपोर्टर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ राजस्थान के। हमारे साथ ज्वाइन किया है मनीष त्यागी जी ने, जो कि एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट है। He is working with lot of brands internationally as well as nationally. Lastly, we are also having a brand itself from Rajasthan, जिसके अंदर सौरभ शर्मा जी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रांड जेनिफर का। They are already a very successful brand, already doing close to 5,000 products in a day. So कैसे ये सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, how people are doing it, let's hear from them closely directly. नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में। पैनल डिस्कशन बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह से ई कॉमर्स हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है और कितना अच्छा इसको इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट वाइज और प्रोडक्ट वाइज करना चाहिए। क्योंकि जयपुर में अभी हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा ब्रांड जो मेरी नज़र में मार्केटिंग कर रहा है या ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है वो जुनाइपर है। तो जुनाइपर से हमारे पास सौरभ जी हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से ही कर लेता हूँ कि किस तरह से हमको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज अ की प्रोडक्ट। So product identification definitely is the first. When you start e-commerce, the first thing which every marketplace or every B2C e-commerce or any vendor will ask is what is your product. So product identification basically comes through three different segments. First is where your product is getting sold. So अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है, let's say we talk about fashion, then 40 to 45% of our sales is coming basically from South India and 30 to 35 is coming from East India. So 40% of the sales is coming from South region. South is basically every region which is based out from Maharashtra to Kerala, and eastern part it starts from Bengal and it covers all the eastern states. So when it comes to manufacturing and a mix of e-commerce, it is very important that we identify the product in such a way that we can cater to both the market. Offline product is very different, which is touch and feel, lot of handwork, lot of embroideries, lot of different patterns in terms of softness or in terms of your count of threads and all. But online product is very different, which is more like a fast fashion. So whenever we finalize the product, it is very important that we identify the sales segment in the first place itself, that this is going to be my 80% market for online or it is going to be my offline market. Brands who are selling offline primarily have एक दो सीजन है, 3-4-5 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, बल्क में एक बार खरीदते हैं। बट फॉर ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स सप्लाई चेन को बहुत एजाइल करना है। पहले उन्हें 100 पीस चाहिए, चाहे आप 3000 पीस वाले मैन्युफैक्चरर हो, you have to be able to give them 100-200 pieces to start with. उसके बाद the quantity can be anything, 5,000 pieces, 10,000 pieces. So आपकी supply chain should be able to cater to both the quantity. आप 100 पीस बनाने भी पड़ेंगे और 5,000 भी बनाने पड़ेंगे. So that is a major difference which I see has come for a manufacturer when working with online first brands. दोनों से ही सवाल है, बारी बारी से आप जवाब दो कि how you will understand a customer behavior। जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारी जनरेशन ने जब इस काम को चालू किया तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है ना, उस बिहेवियर को, उस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? If you see from an online perspective, it is not a big hindrance. Reason being, अगर आप ऑफलाइन रिटेल के अंदर भी देखें तो रिटर्न्स do come around 15 to 20%. But the problem is not the return, the problem is charges on return, and that is very much being solved from regional e-commerces. So now if you see the trends, sir, so around 10 years back, एक ही मदर अप होता था मिंत्रा का और फ्लिपकार्ट का। Then the Amazon started the multi-state warehouses, and now we are in time wherein one marketplace is having more than 150 warehouses, and the customer is the vendor is told to have their shipment in all the 150. तो प्रॉब्लम रिटर्न नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उस 150 वेयरहाउसेस की लोकेशन पे अपना स्टॉक को सेग्रीगेट करेंगे कैसे, एंड देयर कम्स द टेक। So, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था कि कितनी इन्वेंट्री कैसे आपको मैनेज करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर इन्वेंट्रीज।
स्पेशली एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे आपने कहा 150 वेयर हाउसेज हैं, कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, वो थोड़ा सा आप elaborate करो। So there are steps to it. So whenever I launch my product, there is a discounting part to it, which normally an offline manufacturer starts with 5 to 10%, maybe 15%. Then gradually it increases to 15 to 30 and later on 40%. But by the time it reaches to 40%, let's say it's a 6 months time, आपके प्रोडक्ट का ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक विजिबिलिटी प्लस उसका रिव्यूज रेटिंग स्टेबलाइज हो जाते हैं। So using that data and using some data from marketplaces like impressions and views, you can easily identify कि आपके किस प्रोडक्ट को कहाँ पे विजिबिलिटी मिल रही है, and based on that only you organize your inventory to multiple markets. जैसे मैंने बोला कि ना large retailers are having 150 warehouses. Today only I was reading an article in the Economic Times. जैसे अपन लोग Blinkit, Swiggy इन सबसे grocery order कर रहे हैं. Now all these people have started keeping clothes as well. So data is becoming increasingly important because इन सब के ना हर 2-3 किलोमीटर्स में छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं. So where you have to keep what apparel कौन सी क्लस्टर में, क्लस्टर ऑफ पिन कोड्स बनाते हैं लोग कि कौन से पिन कोड्स में किस प्राइस का क्या कट चल रहा है, वो सब डेटा टीम्स भी जो कंपनी उसको आगे से लीड कर पाएंगी, बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगी, वो बेटर इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगी और इस सेल्स को कैप्चर कर पाएंगी, जो 10-15 मिनट वाला मॉडल है. इसमें हजारों वेयर हाउसेज ऑल ओवर द कंट्री आर बीइंग सेट अप एंड उसमें अपैरल इज बीइंग केप्ट. तो ये भी एक मेजर चेंज आने वाला है कंपैरेटिव. तो इसका मतलब है स्काई इज द लिमिट. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? आपने ऑनलाइन ऑफलाइन का जो कॉन्सेप्ट बताया, मैंने एक चीज नोट की है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्रोडक्ट में काफी फर्क होता है. इसका बेसिक रीजन क्या है और किस चीज पे केयर रखनी चाहिए? Sir, as I said, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक्चुअली प्रोडक्ट का फर्क नहीं है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस का फर्क है. द प्राइस पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन ऑनलाइन will not be very much skyped or hyped in offline market. ऑनलाइन ब्रांड कैसे बिल्ड? आपका इतना एक्सपीरियंस है इसके अंदर, इनसे भी राय लेंगे, मगर मैं चाहता हूँ पहले आप इसको ऑनलाइन, क्योंकि बिना ब्रांड के कोई ट्रस्ट नहीं. आपने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा और उसकी जो रिलेशनशिप है, जैसे वो था ना पहले एग एंड चिकन स्टोरी, कि पहले प्रोडक्ट हो या ब्रांड हो. नाउ हर प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन सकता और हर कोई भी ब्रांड एक बार बन जाता है फिर उसको सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जो मार्केटिंग का जो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा है अपने टेक्सटाइल और अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में, और जैसे बाहर भी काफ़ी आना जाना होता है, कि आपको पहले एक हमारा कंसेप्ट है, आपको थ्योरी लगेगा पर बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, उसे बोलते हैं मार्केट ट्रायंगल. आपको एक मार्केट ट्रायंगल क्या है? बेसिकली सिंपल ट्रायंगल, और उसका जो त्रिकोण है टॉप वो होता है 10%, उसका मिडिल होता है 70% और उसका बॉटम होता है 20. 10 + 70 + 20 = 100. फंडा बड़ा सिंपल है. प्रीमियम प्रोडक्ट which is more amenable, more acceptable, which can grow as a brand, will fall into that top 10% according to my understanding. Rest 60 to 70% has to go to feed our huge burgeoning middle class, whether it is in India or abroad. Middle class is middle class. You will see tremendous variety of stores, and examples are Target, Kmart in Australia, Target in US. They are feeding middle class. And then we have different stores like Zara and others. Even this online store, जिसने आप तहलका मचा रखा है, चाइना का, आई थिंक इट्स कॉल्ड शीन. तो शीन की भी फिलॉसफी क्या है कि दे फर्स्ट स्टार्टेड अपवर्ड, नाउ दे हैव गॉन डाउन. और अब जो एक तूफान आने वाला है हमारी इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में, और जिसको मैं दूर से महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल, वी आर नाउ मूविंग इनटू ए नेक्स्ट फेज ऑफ फैशन कॉल्ड, इट इज़ नो मोर फास्ट फैशन सर. एक नया वर्ड आया हाइपर फैशन. और ये वर्ड कहाँ से आया है आपको पता है? बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हाइपर ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है कि आप ज़मीन में एक टनल में जाइए, एक कैप्सूल में बैठिए और 1 मिनट के बाद आप 400 किलोमीटर में आइए, टनल से बाहर निकलिए, आप और पहुँच गए. फैशन इज गोइंग टू टेक दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ नॉट फार अवे. Zara, Shein and 1 or 2 other brands, I think H&M is also part of this. They have started in this phase. Once this happens, I can assure you the branding
would be a little dissolved situation. Dissolved means first it will be not the brand, let me tell you, it will be speed to the market. यदि आप ट्रेडिशनल टाइम देखेंगे, मैंने वो समय देखा है जब हम दिल्ली में गारमेंट एक्सपोर्टर्स को एडवाइस करते थे, 120 दिन का टाइम मिलता था ऑर्डर से लेके सप्लाई तक, होते होते वो 90 पे आया, 45, 30, और अब ये चैलेंज इतना भयंकर होने जा रहा है कि नाउ शीन सेज आई वांट इट विद इन द वीक। मंडे सर आपको मोमेंट माई ऑफिस ओपन्स, मंडे को ऑर्डर मिलेगा, सैटरडे को मेरे वेयर हाउस में पहुंचना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, बिकॉज इसमें क्या है, ब्रांड्स जो ऑलरेडी डेवलप हो गए, जो ऑलरेडी मैच्योर हो गए, who are having the leadership position, now they will dominate the world. New brands would not have the time to originate or to even develop. तो अब जो इशू आने वाला है कि हमें इस साइकिल को फास्ट कैसे करना है। We have to now look for technological help. वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पहले, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि साथ साथ ब्रांड्स का जो नया ट्रेंड चलेगा, मेरे फ्रेंड्स मेरे से एग्री करेंगे, you will now see a trend that fabric weight will go lighter, whether except home textiles. For apparel or knits, our GSM weight will go closer in the range of 100 to 120, coming down from 250 down. Reason क्या है? Light weight में you can produce fabric faster. Number one, you can produce more of a meterage in the same time, and it is more amenable to knitting, which is 8 to 10 times more productive than weaving. So, using this trend, the next thing is आपकी जो next level technology है, now हम brand की बात करते हैं, we cannot forget the impact and the attack of sustainability issues. Sustainability is no more a fashion, sir. It is no more a fad. अब ऐसी रियलिटी बन गई है कि it has become a chain like a serious compliance. मेरा एक सवाल है कि आप पब्लिसिटी के लिए कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर बेटर है इंडिया के लिए, पर जिस तरह से जूडियो का स्टोर खुला है जहाँ पे 199 से 999 पे गारमेंट बिक जाता है, तो प्राइस का जो प्रेशर है वो कैसे हम मैन्युफैक्चरर हैंडल कर पाएंगे? इतना सस्ता माल उनको बेचना है तो प्राइस प्रेशर मैन्युफैक्चरर पे आएगा, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि कैसे हैंडल करेंगे। और अब और ब्रांड्स भी उस जूडियो की लाइन पे आ रहे हैं और वो भी अपनी MRP कम कर दी जा रही है। सर बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, द कस्टमर इज द किंग। यदि वो जूडोस को आज इंडिया का नंबर 1 बनाने के करीब खड़ा कर दिया है उसने ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब वो एक कस्टमर का डायरेक्शन था। और अब हमको क्या करना है कि इसको काउंटरैक्ट कैसे करना है। नॉट एवरीबडी कैन बिकम जूडोस। उसके लिए या तो आप नॉन वॉल्यूम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाइए। उसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, यू हैव टू कंसिडर न्यू ब्लेंड्स, डिफरेंट ब्लेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आज हेम्प इज कमिंग इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे। हेम्प हैज़ द प्रॉपर्टी, इट कैन ब्लेंड विद कॉटन वेरी कंफर्टेबली, and you can create both aprons, even denims, and you can create home textiles. तो एक तो आपको कुछ नए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे फाइबर में, बट द फाइनल सॉल्यूशन इज व्हाट मार्केट नीड्स। आपको यूनिट कॉस्टिंग करनी होगी फाइबर के। फाइबर इज ए फिक्स कॉस्ट विच डजंट यू डोंट कंट्रोल। उसके बाद अलग अलग स्टेप का, यार्न का, फैब्रिक का, आपको यूनिट कॉस्ट करके यू विल हैव टू क्रिएट a mix or club of those workable products कि जो इस competition में हो सकते हैं, because they will become bigger and bigger. Judo is nothing, is going to be next Shein for India, let me tell you that. वो डायरेक्शन शुरू हो गया। तो वो आपकी समझदारी है। आपको बिल्कुल टॉप नहीं बनाना है, वॉल्यूम नहीं बनाना है। You have to now create market segments for different buyer segments, और 12 सेगमेंट बनते हैं तो आप 2 में घुस जाइए। जो आपको पुसाते हैं और जो आपके लिए वायबल है वो आपके बिजनेस को ड्राइव करेगा। रेस्ट विल बी ए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन।